सजन सचा पातशाह सिर शाहां दी शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। तू सुल्तान कहाँ होमिया, तेरी कवन बड़ाई। जो तू देही सो कहाँ सुअमी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तू देही सो कहाँ सुअमी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, मन चौ पाया प्रभ आगम सुनिया। हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, शोक दुख न व्यापे। गुर चरण लागे जिनस भागे, अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु कोल आके जदों ये एहसास होया शरीर की कीमत सिर्फ उतना चिर है जितना चिर विच सच्चे की जोत है। बिरती मनुख की अंतर्मुखी हो जाती है। शरीरक पद्धर ते जीना छड्ड दिंदा है, मानसिक पद्धर ते जीना है। जितना चिर ये एहसास नहीं होता उतना चिर शरीरक पद्धर का प्रबंध करना, शरीर के खान पीन रहन सौन सारा कुछ ये सच भी कुर्बान करना पवे तो कोई बड़ी गल नहीं समझता। जदों मानसिक पद्धर का जीवन बनता है फिर मनुख अपने दीदार अपन अखां नाल करता है। अपने गिरीबान में सिर नीवा करके देखने की आदत पै जाती है। जदों अपने अंदर झाक मारता है फिर उन्हें पता लगता है यह शरीर कूड़ कुसत भरिया गल ताई पाप कमाए। इस शरीर का कूड़ कुसत का भरिया पिया गल ताई भरिया पिया, हजे भी नहीं हटता तो पाप कमाता। फिर पता लग्या काम क्रोध नगर बहुत भरिया, मेरे साधु खंडन खंडा ये भरिया पिया जीवन औगण का। मानसिक पद्धर के अंदर की तस्वीर वेखी के डर गया। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो कुछ मेहर को पावो, डुबते पत्थर तारे। मन डर गया, इतना पापों का भरिया पिया। अरदास की कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मिट्टी का की धोएगा स्वामी। मिट्टी के ढेले नूं की धोएगा, ढोंदा रहेगा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਮਾਟੀ ਕਾਕੇ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵਿਕਾਰ ਵਸੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਵਸੀ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਵਸੀ ਹੈ, ਔਗਣ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪੱਖੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ, ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਚਾਅ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਾ ਵੱਧਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬੋਲ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜੇ ਵੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚਾਅ ਨਾ ਕਰ, ਚਾਅ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਚਾਅ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਅ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੈ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਚਾਅ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਹੈ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾ ਕਾਲ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ। ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਅ। ਰੱਬੀ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਬੀ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਏਡਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਏਡਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਹੈ, ਮਨ ਚਾਅ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ।
जे तू मेरे बिना खाली प्रतीत करना है, शिव जी कृपा कर, तेरे तो बिना मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है। एक बड़ा प्यारा वचन में कह के फिर अपनी गल बला जाए। किरत कर्म के बिछुड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंड दुष्प्रमे ठक आए प्रभ की शाम, तेन दुधे के बाहरी जिमें दुध को गाने को एक गुण है भी दुध दिंदी है, सिर्फ एक गुण के कारण मालिक की किड्डी उसकी देखभाल करता है, लेकिन उन्हें गुण गवा लिया, दुध नहीं देंगी तो मालिक ने छड्ड दी। हूँ कोई डंडा मारता है, कोई उन्हें भजा देता है, कोई जख्म हो गया, कोई धुप बैठी, कोई छां बैठी, कोई परवाह नहीं करता, गुण गवा लिया। तेन दुधे के बाहरी से किता न आवे काम, जल बिन शाख को मिलावटी उपजे नहीं दाम, जेड़ी खेती नूं पानी ना लगे मालिक की कौड़ी कीमत नहीं समझता, उसकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि खेत में बीज पाएगा उपजे नहीं दाम, उन पैसा तो मिलना नहीं, खेती की होनी। कहते इसे तरह जीवन मेरा बन गया सके पातशाह, गुणों तो भी होगा, तू कृपा कर। फिर रब का सदा आया, मन चाह पाया तो गुणा करके बसन लग पाया, मन चाह पाया प्रभ आप में सुनिया, मन में चाह पैदा हो गया, जदों ये गल सुनी आके बसन लग पे। एक पंजवां चाह है सहबा हुण विछोड़ा ना पाए, जिउंदियां जी विछोड़ा पाउणा ते बड़ी दूर की गल है। हुण ते जी करदा मेरे जीवन का अंतला श्वास भी तेरे दर ते निकले, कबीर मोहे मरने का चाव है, मेरा आखिरी श्वास भी तेरी दहलीज से निकले। पंजवां चाहे कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो का हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार, मेरे दरवाजे से कौन पिया, जे तू इन्नी भी गल पूछ लेना मेरा जीवन सफल हो जाए। बस तू एक बारी मेहर की नजर करके पूछेगा तो है ही ना भी कौन पिया, शक करके जाने हो। अज का वचन बड़ा सानू अंदरों भिओ के अरदास करने की प्रेरणा पैदा करता है। शब्द नाल चलिए, हजूर कृपा करके ने मन चाह पैदा, मन में चाह पैदा हो गया, मन में खुशी आ गई, मन में आनंद आ गया, मन में सुकून आ गया, मन में धीरज आ गया। कोई शब्द ना, कदों प्रभ आप में सुनिया, जदों मैं सुनिया मेरा मालिक आ रहा, हुण मैं उड़ीक करनी, गुरमत आ चीज है, इसमें थोड़ा सा समझ लेना। लोग रब नूं लभण बाहर जाते सी, शरद ने आख्या बाहर नहीं जाना तो घर च बैठ के उड़ीक कर। गुरमत ने जिन्नियां उदाहरण दित्तियां ने वो उड़ीक करन दी दित्तियां ने। शेख फरीद के वचन पढ़ लो, कागा कर ढोलिया सगला खाया मास, ए जो नैना मत छूहो फिर देखने की आस। उड़ीक है, उड़ीनी 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 कब कर आवे री, मैं उड़ीक नहीं है, मैं उड़ीक नहीं है, कदों मेरा प्यारा घर आएगा। आबू सजना हुण देखण दर्शन तेरा नाम, घर अपन ले खड़ी तक्का मैं मन चौक मेरा नाम। उड़ीक है, शक करके जाने हो, जिहड़ा प्यारा हुंदा उड़ीक उसे की हुंदी है, उसे की उड़ीक भी सुकून देती है। उड़ो ना कागा कारे, देख बलीजे अपने राम प्यारे, कां हंकार बुद्धि विकार बुद्धि, कां तू क्यों नहीं उड़दा, मैं अपने प्यारे नूं मिलना। उड़ीक है, लभण की लोड़, भटकण की लोड़ नहीं, उड़ीक कर घर विच बैठ के। पंथ निहारे कामनी, सुहागवती स्त्री लभण थोड़ा जाती है, जे लभण चली है तो तेरे च कोई कमी है। शेख फरीद का बोल पढ़ लो, फरीदा ढूंढेगी है सुहाग को, तो तन काई कोल, जिन्हां नौ सुहागनी तिन्हां झाकना होर। जे तू लभ भी फिरनी फिर तू सुहागन नहीं हो सकती।
सुहागन के उड़ीक कर दिए घर च बैठी। पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा पुरना भिजै भगना किसै हर दर्शन की आसा। उड़ीक कर रही मन चौ भया प्रभ आगम सुनिया। हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बने। हे सखिए हे मेरी जिंदे तू रब दे गुण गा। रब दे गुण क्यों गाने ने? कहते कमलिए घर जेड़ा वो मंदिर बन जाता है। बहुत फर्क है घर विच ते मंदिर विच। घर विच मनुख की मर्जी चलती है, मंदिर विच रब की मर्जी चलती है। यही फर्क है। याद रखो कि घर च मेरी मर्जी चलती है, मैं किन्ने बजे उठना है, किन्ने बजे सोना है, किन्ने बजे की खाना है, की पहनना है, मेरी मर्जी। घर च किसी ने नशे रखे हो तो कोई रोकता थोड़ा, मेरा अपना घर है। पर धार्मिक स्थान के बाहर लिखे होंगे कि नशा लेके आना सख्त मन। दोनों गल्लां चलता है। घर च मैं अपनी मर्जी नाल रह सकना, पर जो गुरु घर च रहना है, गुर कै गृह सेवक जोड़ है, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को करकश न जनावे, हर बार नाम रिझै सत ध्यावै, मन विच सतगुर के पास, तिस सेवक के काज रास, सेवा करत होए ने कामी, तिसको बोझ प्राप्त स्वामी। गृह मंदिर बनाना बहुत औखा है। उत्थे तो गुरु की मर्जी चलती है, उत्थे मेरी मर्जी नहीं चलती। और याद रखियो जिथे रब के गुण गाए गए वो भावें टुट्टी छपरी है। भगत नामदेव की अज संसार नमस्कार कर जाता है। किसी का भी घर सी भावें कबीर साहब की झुग्गी होगी, साडा घर होगा, पर अज लोग तरसते हैं, वो मंदिर बन गया। जिथे किते बैठ के गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश होया, उन्होंने जीवन गुजारे, कुछ पल गुजारे, कुछ समा गुजारे। अजो मेरे तक कानून का घर नहीं है, अजो गुरु का घर है, अजो गृह मंदिर बन गया हो गया। गुरु अंगद साहब का घर ला लो, गुरु अमरदास जी का घर ला लो, गुरु अर्जन पातशाह का घर ला लो, जेड़े मर्जी का घर ला लो, जिहड़ियां घरां दीयां रहायशां सी अजो पवित्र मंदिर ने, पवित्र स्थान ने, धार्मिक स्थान ने। हजूर कहते जिथे भी गुण गाउण लग पे हैं, याद रखो जे मंदिर भावें सादा भी होवे, धार्मिक स्थान भावें सादा भी होवे, लोग नमस्कार करते हैं। राजे महाराजे का महल भावें कितना ही कीमती होवे, इंडिया तुसीं देखिया होवेगा ताज महल कितना दुनिया देखण जाती, मत्था ते नहीं कोई टेकदा। लाल किला कितना कीमती है, लोग मत्था से नहीं ना टेकते। राजे की इमारत कितनी बड़ी हो सकती है। लखनऊ के बड़े 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 महल ने, राजस्थान में किटे किटे राजे महाराजे के महल अज भी ने जेडे इस गल की उड़ीक विच ने, पर कोई मत्था नहीं टेकता। गृह मंदिर बने। छोटी जी की बेनती कर लेगा, लाहौर की धरती उत्ते जहांगीर पातशाह का शाला है। आसिफ शाह का नाम लिखा डॉक्टर रतन सिंह चग्गी ने, सिख पंथ विश्वकोश। उन्हें महल बनाना सी, उन्हें इट्टां का ठेका दे दिता भाई बुद्धू, तो इट्टां बना, मैं इट्टां खरीदांगा। वो इट्टां का कट्ठा ला गया कि जदों शुरुआत करनी सी, अरदास करने लगा, लंगर प्रशादा पानी सत्संग किया। उदों एक भाई लखू नाम का साधा है। मैं फिर अर्ज करा, कदे किसी के कपड़िया तो अंदाजा ना लाया करिए भी किहो जिहा हो सकता है। हो सकता है जिन पट अंदर बाहर गुजर ते भले संसार। उहदा जीवन बहुत वधिया भाई लखू का, वो भी चला गया। तो जेडे बाकी लोग सन उन्होंने, जेडे आम सेवादार ने, उन्होंने अगे ना आने दिता। भाई लखू ने कई बार कोशिश की, क्यों ना आना दिता,
भाई लखो पासे जे खलोते अरदास की सच्चे पातशाह कारज रास आ जाए। भाई लखू ने अरदास तो बाद विच उच्ची सारी हस के गल कही, वो लोगों के दिल दिखाने वाले आ किहड़े मूँह नाल गुरु अगे अरदास करना है, किहड़े मूँह नाल अरदास करना है। मैं एक छोटी जी बेनती और करना इन चेते में रख लो जी जरूर। एक राजा किसी फकीर को कह लगा, बाबा अरदास कर मेरा राज सलामत रहे, सुखी रहे। वो कह लगे तेन मेरी अरदासों की लोड़ नहीं, प्रजा को सुखी कर दे तो सुखी हो जाए। प्रजा से कहर करना ते अरदासा फकीर को कोई फर्क नहीं पै देता। असी बाहर गरीबों का लहू पीने ते इत्थे आके अरदासा कर देंगे, मालिक तू कृपा कर। इवें ही ठगिया जाना धर्म की दुनिया में, मना भुलेखे विच ना रहना। भाई लखू ने बचन आखे, कह लगे भलिया तेरा तो गुरु का सुभाव ही नहीं रखता, तेरा काम गुरु किवें करेगा। लखू की गल सुन के लोग सचेत होए। भाई बुद्धू भी आया, कहते क्यों, कहते उनका नाम गरीब नवाज है, तू गरीबों को धक्के मारना, तेरा सुभाव ही नहीं रखता गुरु, तेरा काम किवें होएगा। वो कह लगे तू है कौन, कह लगे मैं भी गुरु का सिखी। एक गल चेता रख, तू अमीर बंदा है, अमीर बंदे को शहर के सारे जानते होंगे, तेनू मैं भी जानता, तू बहुत अमीर है, सरकारी ठेकेदार है। पर चेता रख, चेता रख, तेरे घर में पहला कदे आया अमीर के तू कितने चलाना। वो कहता नहीं, कह लगी फिर तेरे घर में कल तो बाद भी नहीं आना, पर अज तू धक्के भी मारे में तां भी नहीं जाना। कहते क्यों, कहते अज का दिन च सत संगत हो रही है, ये तेरा घर नहीं हुण रब का घर बनया होया, रब के घर तो धक्के भी मिलणगे मैनूं परवाह नहीं। तेरे घर में पहला भी नहीं आया, तेरे घर में बाद में भी नहीं आना, पर अज तू धक्के भी दवे मैं तां भी नहीं जाना। यकीन करके जानिए, अपने घर में हंकार होता है, पर जब मंदिर बन जाए उदो फिर सबना प्यार होता है। धार्मिक स्थानों के किरदार घड़े जाते, इतने किरदार घड़े जाते। धार्मिक स्थानों कहते हैं जिथे किरदार घड़िया गया, जीवन घड़िया गया। गृह मंदिर बने, हर गाओ मंगल नित सखिए, शोक दुख ना व्यापे। ये मेरी जिंदे जे तू रोज रब दे गुण गावे, जे तू रोज रब दे गुण गावे, तेनू दो चीज़ां नहीं व्यापन दी। व्यापन का मतलब होता है महसूस होना, किसी की समर्था की बात